you cannot watch this video till the end because this video does not have any catchy music or visual hooks or psychological triggers or anything like that. And you are too habitual, too addicted to content full of these things that you cannot watch a video without it till the end. And for the very same reason, I want you to try to watch this video as much as you can because I'm going to talk about how is it actually affecting your life. Your attention is basically your ability to focus upon something multiplied with the time. एंड तुम्हारी अटेंशन के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विच इज टू बेसिकली डिटरमाइन एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ, एवरीथिंग अबाउट यू. तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारी हॉबी, तुम्हारा पैशन, तुम्हारा बिहेवियर, लाइफस्टाइल, हर चीज़ यहीं से आती है कि तुम अपनी अटेंशन कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो. एंड बेसिकली योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेयर यू पे योर अटेंशन. And when that attention is being taken away by platforms like Instagram, YouTube and Netflix, which are constantly flooding you with irrelevant information, memes and just stream of information flowing in form of online content, you start to feel meaningless and your life kind of becomes purposeless. And what else do you even expect? Because these platforms are designed, they pay a lot of money to design their algorithm, to create AIs and to improve their AIs to make you keep watching their content for hours without stopping. कब तुमने रियलाइज किया कि तुम कितना टाइम इंस्टाग्राम या फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे या इवन नेटफ्लिक्स वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म पे बिंज वॉच करते हुए निकाल देते हो? वेल, दैट इज बिकॉज योर अटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉनेटरी गेन्स. एंड हाउ इज दैट? कभी कभी तुमने शायद देखा होगा इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट या एडवर्टीजमेंट्स आते हैं. And Instagram charges those advertisers and those creators जो अपनी post को sponsor करवाते हैं based upon how many views, how much attention it is gonna get. And similarly तुम्हारे जो content creators होते हैं they get paid by brands for collaborations and for product promotions based on how many followers they have, how many views they get and how much attention they can attract to that product. And all of this gives rise to something known as the attention economy. A system where your attention is a form of service or currency exchange for money. अब तुम्हारी अटेंशन को बेच के ये लोग पैसा कमा रहे हैं. एंड हाउ मैं कंपेयरिंग अटेंशन विद मनी और एनी करेंसी और कॉलिंग इट एन अटेंशन इकोनॉमी, आई विल एक्सप्लेन टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारी अटेंशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड और स्कार्स है. तो जैसे मैंने बताया कि तुम्हारी अटेंशन टाइम का एक बाय प्रोडक्ट है कि तुम अपना टाइम और फोकस किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और तुम्हारे पास दिन में सिर्फ 24 ही घंटे हैं. So which makes attention even more valuable than money because unlike money it is very limited and very scarce. Secondly, तुम्हारी attention, तुम्हारा behavior, तुम्हारे life choices हर चीज़ को determine करती है, so it is extremely valuable. And third, तुम्हारी attention को influence करा जा सकता है काफ़ी easily using viral hooks, psychological triggers and other tricks. So your attention becomes very very valuable for platforms and other content creators and everyone who is trying to sell you something, who is trying to make profit and who is trying to make money because your attention can be equal to their monetary gains very well. अब तुम समझो कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम YouTube पे कुछ कंटेंट देखने आए हो, मे बी जस्ट फॉर एग्जांपल कि तुम कोई स्टूडेंट हो एंड तुम YouTube खोलते हो कोई लेक्चर देखने के लिए या कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखने के लिए, बट यू एंड अप वाचिंग कोई व्लॉग या कोई और कंटेंट जिसको शायद तुमने देखना प्लान भी नहीं किया था, जो शायद तुम्हारी लाइफ से रेलेवेंट भी नहीं है, तुम्हारा मन भी नहीं था देखने का, बस जस्ट बिकॉज इट वॉज डेकोरेटेड विद सम काइंड ऑफ अ विजुअल हुक और अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर, यू स्टार्ट वॉचिंग इट एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग तुमने शायद आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा और न जाने कितने घंटे स्पेंड कर दिए हैं विदाउट इवन फुलफिलिंग द एक्चुअल टॉपिक जिसके लिए तुम आए थे. जो लेक्चर देखने के लिए तुमने यूट्यूब खोला था या जो क्रिएटर का कुछ काम देखने के लिए या किसी को डीएम करने के लिए इंस्टा खोला था, तुम रील स्क्रॉल करते करते बैठ गए. You need to sit back and realize कि how all of this is like a completely made up system to catch your attention and to sell it in exchange of money. And what can be more miserable than not even having the control of your life and not even knowing it? You yourself are giving the control of your life into someone else's hand and you don't even realize it. Every time you pay attention to anything, any content that you are consuming online, you're basically allowing someone to add kind of information to your brain and that information is gonna influence all your decisions, all your behavior and basically everything about your life. So
अब ऐसा नहीं है कि कंटेंट कंज्यूम करना ही बेकार है या तुम्हें कुछ भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए. ऑल आई एम सेइंग इज कि कंज्यूम कंटेंट बट बी कॉशियस अबाउट इट. अब अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड यू हैव स्टेड अप टिल हियर, हो सकता है तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई है फोकस करने में, हो सकता है तुम्हारा मन किया हो किसी और वीडियो पे जाके देखने का, आसपास वाली किसी वीडियो का थंबनेल देखने का या इस रील से स्क्रॉल अवे करने का. सो बट अगर स्टिल तुमने अभी तक यहाँ तक देखा है, नाउ आई एम गोना टेल यू कि कैसे तुम उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल वापस ला सकते हो. हाउ कैन यू अचीव, हाउ कैन यू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. द फर्स्ट थिंग आई वुड आस्क यू टू डू इज मॉनिटर योर अटेंशन. तुम अपनी अटेंशन कहाँ, कब, कैसे दे रहे हो, उस चीज़ को मॉनिटर करना स्टार्ट करो, उस चीज़ का एक ट्रैक रखना स्टार्ट करो. जस्ट गो टू योर स्क्रीन टाइम एंड सी कितना टाइम तुम इंस्टाग्राम पे डेली स्पेंड कर रहे हो एंड ट्राई टू मिनिमाइज इट. एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक रिपीटेड ट्राइज, रिपीटेड एक्टिव एंड लाइक तुम्हें बार बार ट्राई करना पड़ेगा बैठ के. सेकेंडली, फाइंड सम इंटरेस्ट, फाइंड सम topics, find some streams where you want to actually pay your attention and that can add some meaning to your life and start paying attention there. सिर्फ अपना अटेंशन माइंडलेस स्क्रॉलिंग से हटाने के लिए अगर तुम खाली ऐसे ट्राई करोगे कि हाँ ठीक है जब खाली टाइम है तो मैं खाली बैठा हूँ, स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, इट विल मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज इट इज़ डिजाइंड इन अ वे कि 1 मिनट भी हमारा दिमाग खाली होता है तो हम रीच आउट कर लेते हैं अपने फ़ोन के लिए और रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं. So add something to your life which can make it more meaningful, which can allow you to invest your time and create something productive out of it. It can be anything, it can be a skill, it can be your studies, it can be anything which can add meaning to your life. And third, try to minimize your digital exposure. तुम एक ऐसे environment में हो, एक ऐसे space में हो which is precisely designed to suck away all your attention. And staying in that environment for long makes it even harder to fight the urge of scrolling and staying in that mindless loop of content. मैंने खुद भी अपने अटेंशन को लेकर काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया है एंड उस इंस्टाग्राम के माइंडलेस लूप के अंदर कई बार फंसा रहा हूँ. इवन 6 घंटे मैंने दिन का इंस्टाग्राम यूज़ किया है. बट एज सुन एज आई एक्नॉलेज दिस थिंग, एज सुन एज आई रियलाइज व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग विद मी, आई स्टार्टेड ट्राइंग टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी. इट्स नॉट लाइक कि तुमने आज डिसाइड किया और 1 हफ्ते के अंदर तुम उस चीज़ को अचीव कर लोगे. इट विल टेक यू एक्चुअली मंथ्स बिकॉज फ्रॉम मंथ्स यू आर डूइंग इट एंड तुम एक दिन में उसको डिसअपियर होने का ट्राई नहीं कर सकते. सो आई फाउंड माई हॉबीज, आई फाउंड माई इंटरेस्ट, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग इट. आई फाउंड सो मैनी पीसेज इन माई लाइफ जिनके ऊपर मैं अपनी अटेंशन पे कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ गिविंग इट देयर, कि मेरे पास मेरा फ्री टाइम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मिनिमम होने लगा. एंड दैट वॉज बेसिकली द एम. सी, तुम्हारा फ्री टाइम अगर कुछ है भी, so that is the time you spend relaxing or that is the time you spend on things that you enjoy or on resting, on rejuvenating yourself. And this mindless stream of content does none of that. So किसी भी खाली टाइम में बैठ के इसको स्क्रॉल करना is not actually even resting or rejuvenating or recreating or like fulfilling your interest. तो अगर तुम्हें रेस्ट लेना भी है तो उन चीज़ों के ऊपर लो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है या जिनको करने में तुम एंटरटेन होते हो, तुम्हें मज़ा आता है. एंड जो तुम्हारा बाकी का टाइम है, इन्वेस्टेड अपॉन थिंग्स जो एक्चुअल में तुम्हारे लिए मैटर करती हैं, जो तुम्हारी लाइफ में मीनिंग ऐड करती हैं. एंड सो काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ को प्रैक्टिस करते करते इवन आई हैव बीन एबल टू रिड्यूस माई ओन स्क्रीन टाइम एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू समथिंग विच आई डोंट ऑलरेडी नो, जो मेरे लिए वर्कआउट ना की हो. दिस वॉज समथिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड अमंग ऑल ऑफ पीपल अराउंड मी, चाहे मेट्रो में ट्रैवल करते हुए मेरे फ्रेंड्स हों या खाना खाते हुए मेरे कॉलेज में मेरे क्लासमेट्स हों जो इवन क्लास में लेक्चर्स में बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं. सो दिस हैज बिकम सो हैबिचुअल एंड सो नॉर्मल अमंग ऑल ऑफ अस दैट वी डोंट इवन पॉइंट दिस थिंग आउट. बट अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है, मे बी यू हैव रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड अगर तुम्हें लगता है कि इसका कहीं भी कोई सेंस बनता है, आई वॉन्ट यू टू गो आउट देयर एंड इवन टेल पीपल अराउंड यू, मेक देम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हाउ आर दे लूजिंग इन देयर लाइफ टू समथिंग सो मीनिंगलेस दैट इट्स नेवर गोना एड एनीथिंग टू देम एंड इतना कोई लाइक एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तक बिल्ड नहीं करने वाली है. एंड आई थिंक कि दिस वाज ऑल दैट आई वांट टू से इन दिस वीडियो. इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि कंटेंट कंज्यूम करना इज नॉट बैड अनलेस दैट कंटेंट इज कंट्रोलिंग.